Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your maths teacher, Mrs. Anjum Wasim. I welcome you all to lecture number 13, Unit 6, Algebra, Mathematics, Class 8. Our today's topic is cube of polynomials. Just like the square of the binomials, like a plus b whole square, a minus b whole square, we have a plus b whole cube and a minus b whole cube formulas. So today we are going to discuss these two formulas. The first one is a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. And the second, and you can also write this in another form, and that another form is this one: a cube plus b cube plus 3ab into a. When 3ab is multiplied with this a, you can get 3a square b, and when this 3ab is multiplied with this b, you can get 3ab square, right? And another formula for minus is a minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, and its another form is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. This minus 3ab, when multiplied with this minus b, this minus and this minus, they are multiplied and we get plus, and b and b, they are multiplied and we get b square. So this whole becomes 3ab square. So these are in fact two formulas. The first one is this one, and the second one is this one. So you have to remember and memorize these and apply these in the questions directly. But I will give you a proof how we derive these formulas, or how do we get the right hand side of these formulas from the left hand side. a plus b whole cube से हम ये सारी form किस तरह बना सकते हैं. So I will explain the proof in the next slide. In our today's lecture, we are also going to study exercise 60, question number 1, part A to F. First of all, see the proof of a plus b whole cube. This formula is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, and we can also write it as a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. ये दोनों फॉर्म्स हैं. ये आप दोनों फॉर्म्स को याद रखेंगे. कभी हम इस फॉर्म से हेल्प लेते हैं और कभी हम डायरेक्टली इस फॉर्म से भी हेल्प लेते हैं. अब आप देखें कि a plus b whole cube है, ठीक है. आई एम राइटिंग a plus b whole cube over here, and I will be splitting it into two parts. One is with the power 2 and another is with the power 1. So a plus b whole square into a plus b power 1. So this in fact is a plus b whole cube being splitted into two parts. दो हिस्सों में हमने इसको तकसीम कर दिया. एक की पावर 2 है, एक की पावर 1 है. बिल्कुल ऐसे ही आप जहन में रखें जैसे x क्यूब को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू x, राइट. सो a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम देखें तो वो हमें मालूम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है. और अब जब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी, और उसके बाद इसकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू a प्लस बी. एंड नाउ they are being multiplied. a स्क्वायर को हम a प्लस बी से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इस b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले हमने ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी से, फिर हम इस बी स्क्वायर को इस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर हम इस 2ab को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ए प्लस बी से. यानी ये तीनों वैल्यूज बारी बारी इस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रही हैं. दिस इज सिंपल हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन. और अब इनको जब मल्टीप्लाई करने के बाद इनका क्या आंसर आ जाएगा. ए स्क्वायर जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब आ जाएगा,
ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई हुआ तो बी क्यूब, 2ab ए से मल्टीप्लाई हुआ तो 2a स्क्वायर बी, 2ab जब b से मल्टीप्लाई हुआ तो 2ab स्क्वायर. Now the next step we can have a cube from here, b cube from here, and a square b and this 2a square b, they are added to get 3a square b, and ab square plus 2ab square, they are added to get 3ab square. अब इन दोनों में से ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इन दोनों में कॉमन है 3ab, right? So in the next step we are going to take 3ab as common. So it will be now 3ab is common and inside we are having 3ab. जब यहाँ से 3ab कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ a बचा, और यहाँ से जब 3ab कॉमन ले लिया तो यहाँ से सिर्फ b बचा. So overall we can have this form. ये जो फॉर्म आपको बताई थी, ये इस तरह से हम ये सारा जो है ये क्या हुआ, ये प्रूफ हमने किया, प्रूव किया a प्लस बी होल क्यूब किस तरह इस फॉर्मूले के इस राइट हैंड साइड के इक्वल है. तो ये दोनों फॉर्म्स देखें आप, ये दोनों फॉर्म्स जो लास्ट टू लाइंस हैं, ये दोनों फॉर्म्स हमारे पास आ गई. तो इस तरह बिल्कुल इसी तरह अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे माइनस का फॉर्मूला और सेम पैटर्न पर इसी तरह प्रूव होगा. a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. याद रखें यहाँ पे एक प्लस आता है, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले की जब सेकंड फॉर्म आती है ये वाली तो इसमें यहाँ पर एक प्लस आएगा. अब इसको देखें कि ये किस तरह प्रूव हुआ, बिल्कुल उसी तरह a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी. इसको स्प्लिट कर लिया, अब इसकी जगह पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर हमें मालूम है कि वो किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के. तो ये वैल्यू हम इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट हो गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू a माइनस b. अब बारी बारी ये तीनों वैल्यूज बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले स्लाइड में आपने देखा, ये a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये इस स्टेप में मल्टीप्लाई हो गए. पहले a स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस b स्क्वायर और फिर माइनस 2ab. ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, a माइनस बी से सब मल्टीप्लाई हुए. मल्टीप्लाई होने के बाद इनके आंसर्स आ गए, a क्यूब माइनस ये a स्क्वायर माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ माइनस a स्क्वायर b, फिर प्लस a b स्क्वायर माइनस b क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए तो प्लस 2ab स्क्वायर आ गया. अब हम इनको कंबाइन कर लेंगे, a क्यूब यहाँ से ये माइनस b क्यूब और माइनस a स्क्वायर b और ये माइनस 2a स्क्वायर b कंबाइन हो गए माइनस 3a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर ये कंबाइन हो गए और प्लस 3ab स्क्वायर आ गए. अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3a माइनस 3ab. ये जब कॉमन लिया तो ये फर्स्ट टर्म में से a बचा और सेकंड टर्म में से b, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा. तो इस तरह से ये वाली फॉर्म जो है ये हमारे पास अचीव हो गई. सो अगेन इट्स अ प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला, द सेकेंड क्यूब फॉर्मूला. एक a प्लस बी होल क्यूब आपने लर्न किया है और एक a माइनस बी होल क्यूब आपने लर्न किया है. अब कुछ पार्ट्स पर इसको अप्लाई करते हैं. एक्सरसाइज 6c पार्ट ए है 3a प्लस 2 होल क्यूब, इसको एक्सपैंड करें. ठीक है, सो वी हैव रिटन द फॉर्मूला, दोनों फॉर्म्स उसकी लिखी हैं, लेकिन दोनों फॉर्म्स इसलिए लिखे ताकि आपको दोनों याद भी होती जाएं और दोनों का रिलेशनशिप भी पता चल जाए. ये फॉर्म याद होगी तो ये आप खुद ब खुद बना सकते हैं. 3ab को a से मल्टीप्लाई किया 3a स्क्वायर भी, और 3ab को b से मल्टीप्लाई किया तो 3ab स्क्वायर बन जाता है. अब जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें इस फॉर्म, अगर हमें दोनों फॉर्म्स याद है दोनों से ही आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप डायरेक्टली इस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, जाहिर है कि किसी एक से ही पुट करेंगे. सो we will be putting the value of a and b in any one form of the formula. I am putting it over here. I'm writing both the formulas and I'm putting the values in the second form, right? 3a plus 2 ये क्वेश्चन है, इसका मतलब है a की वैल्यू 3a है और b की वैल्यू 2a है. ठीक है, कंपेयर इट विद द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी होल क्यूब, और सॉरी फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल क्यूब, और क्वेश्चन क्या है 3a प्लस 2 होल क्यूब. तो a की वैल्यू है 3a,
जहां जहां ए आ रहा है वहां आप 3a लिखेंगे, जहां जहां b आ रहा है वहां आप 2 लिखेंगे. सो a क्यूब मीन्स 3a होल क्यूब, b क्यूब मीन्स 2 क्यूब, 3a स्क्वायर b, इसकी जगह आपने ये लिखा 3 इंटू 3a स्क्वायर इंटू 2. और ये जो लास्ट टर्म है 3ab स्क्वायर, इसकी जगह आपने ये सब लिखा, 3a की जगह 3a लिखा और b की जगह 2, b स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर लिखा. अब जस्ट आप देखेंगे कि कितनी टर्म्स हैं, 1 2, ये सारी एक टर्म है, 3 और ये चौथी एक टर्म है सारी. इन सबको आपने अलग अलग सॉल्व कर लेना है. 3a तीनों 3 दफा मल्टीप्लाई हुआ 27a क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 दफा मल्टीप्लाई हुआ 8 हो गया. 3a को 3a से मल्टीप्लाई किया तो 9a स्क्वायर हो गया, और वो 9a स्क्वायर जब 3 इंटू 2 इंटू 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 3a 9a और ये 2 इंटू 2 4. अब नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लिकेशन हम कंप्लीट कर लेंगे. 27a क्यूब उसी तरह, 8 उसी तरह, 6 इंटू 9 54a स्क्वायर और 9a इंटू 4 36c. और लास्ट स्टेप में हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. 27a क्यूब, फिर 54a स्क्वायर और फिर 36a और लास्ट में 8. तो इस तरह ये इसके जो तमाम टर्म्स थी उनको हमने डिसेंडिंग फॉर्म में लिख लिया. दिस इज द आंसर. पार्ट बी देखिए, 2d प्लस 3 होल क्यूब. बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा. हमने फॉर्मूला लिखा, उसकी जो सेकंड फॉर्म है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द फॉर्मूला, दीज आर द टू फॉर्म्स. और उसके अंदर 2d प्लस 3 होल क्यूब हमने सब्स्टिट्यूट करना है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट इज 2d. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? इट इज 3. जहां जहां फॉर्मूले में a है वहां 2d आ जाएगा, और जहां फॉर्मूले में b है वहां 3 आ जाएगा. क्योंकि ये प्लस का फॉर्मूला था इसलिए हमने प्लस का फॉर्मूला ही यूज किया है. जैसे अगले क्वेश्चंस में माइनस आएगा तो हम माइनस का फॉर्मूला भी यूज करेंगे. अब ये आ गया 2d होल क्यूब, a क्यूब की जगह, b क्यूब की जगह 3 क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर b की जगह 3, 2d स्क्वायर 3, 3ab स्क्वायर की जगह 3, 2d 3 स्क्वायर. अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं. 2d क्यूब का मतलब है 2d इंटू 2d इंटू 2d, वो आ जाएगा 8d क्यूब. 3 क्यूब का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 27. 3 इंटू 3 इज 9 एंड 2d मल्टीप्लाइड विद 2d, बिकॉज स्क्वायर है तो सिर्फ 2 दफा मल्टीप्लाई होगा तो 4d स्क्वायर आ गया. ये 3 और 2d मल्टीप्लाई हुए तो 60 हो गया, और 3 स्क्वायर इज 9. 8d क्यूब प्लस 27, 9 इंटू 4 इज 36d स्क्वायर और 9 इंटू 6 इज 54d. और अब इनको अरेंज कर लेंगे. 8d क्यूब प्लस 36d स्क्वायर प्लस 54d प्लस 27. तो डिसेंडिंग ऑर्डर ये आ गया. पार्ट सी देखें, इसका बिल्कुल सेम पैटर्न पे है. 4c प्लस 1, द वैल्यू ऑफ a इज 4c. हमने फॉर्मूला लिखा और वैल्यू ऑफ a और b हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. 4c है a की वैल्यू और b की वैल्यू है 1. सो 4c क्यूब a क्यूब की जगह आ गया, 1 क्यूब b क्यूब की जगह आ गया, और 3a स्क्वायर b में अब आप देखें 3 तो 3 ही रहेगा. a की जगह 4c आ गया, 4c स्क्वायर और b की जगह 1. 3ab स्क्वायर 3 4c इंटू 1 स्क्वायर. इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे. 4c मल्टीप्लाइड बाय 4c मल्टीप्लाइड बाय 4c इज 64c क्यूब. 1 क्यूब इज 1 और 3 into 1 is 3 and 4c multiplied by 4c is 16c square. 3 into 4c is 12c and 1 square is 1. In the next step कुछ और simplifications कर लेंगे. 64c cube as it is, 1 as it is, 16 into 3 is 48c square and 12c into 1 is 12c. And now the last step for the descending order, 64c cube plus 48c square plus 12c plus 1. So this is the answer. Next is part D. Now in this part you can see a difference. It is a minus cube, right? 5 minus 2m whole cube. So that is why we are going to use the formula of the minus. आप देखिए कि दोनों के फॉर्मूला का स्ट्रक्चर 100% सेम है, सिर्फ इनमें साइंस का फर्क है. और वही फर्क जो है वो इस माइनस और माइनस में यहाँ इस जगह ये पर्टिकुलर एक बहुत स्पेशल फर्क है कि माइनस के तमाम फार्मूले में लेफ्ट एंड राइट एंड साइड
दोनों तरफ माइनस है, लेकिन जब हम इस फॉर्म पे आते हैं तो यहाँ पे इस स्टेज पे आके ये माइनस और ये माइनस प्लस बनाते हैं. Now we will put the value of A and B in the formula, and in this form now we can see that A is 5 and B is 2m, right? जहां A है सिंपल बस वहां 5 पुट करना है, जहां B है सिंपल वहां 2m पुट करना है, और जो माइनस है सारे फॉर्मूले वाले वो उसी तरह, जो प्लस है वो सारे प्लस ही रहेंगे. ये माइनस है, ये माइनस रहा, ये माइनस है, ये माइनस रहा, ये प्लस है तो ये प्लस आ गया, राइट? प्लस के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि तमाम वैल्यूज पॉजिटिव थी, तो आपने तमाम वैल्यूज पॉजिटिव ही रखी हैं. Now a cube is 5 cube, b cube is 2m cube, minus 3a square b is minus 3, 5 square into 2m plus 3ab square is 3 into 5 into 2m square. a क्या है 5, b क्या है 2m, तो 3ab स्क्वायर जब लिखेंगे तो 3 5 2m स्क्वायर. अब इनको अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर लेते हैं. 5 क्यूब मींस 5 multiplied by 5 multiplied by 5 which will give you 125. 2m whole cube means 2m multiplied by 2m multiplied by 2m which will give you 8m cube minus, इसी तरह माइनस ही रहा, ये माइनस माइनस ही रहा. 3 into 2m पहले सॉल्व कर लेंगे and it will be 6m. There is a mistake over here, let me correct it. You will make it 6m, it is not 10m, it is 6m, right? And 5 square is 25 and plus 3 into 5 is 15 and 2m whole square is 4m square. In the next step, you will have 125 as it is minus 8m cube as it is, and 25 1 multiplied by 6, it will give us not 250. Let me make it correct. It will be 150. Instead of 250, it is 150, right? It is minus 150 m, and 15 into 4 is 60 m square. And when we will arrange it in descending order, it will become, first of all, minus 8m cube, then plus 60 m square, then minus 150 m, then in the last you will have plus 125 here. So this in the instead of minus 250, we are having plus 1 minus 150 over here, right? ये एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये 3 और 2 ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 6m आएगा, जो कि मिस्टेकनली 10m लिखा गया है, तो आप ठीक कर लीजिएगा इसको. नेक्स्ट पार्ट डी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. Part E, 1 minus 5h whole cube, as it is a minus formula, right? So we will write down the formula of a minus b whole cube, and we know that it is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, and its second form is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. और इसी फॉर्म में हम इसके a और b की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. a is 1 and b is 5h, right? We have substituted all the values over here. जैसे कि आप इस वक्त तक बहुत सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि किस वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती है. 1 का क्यूब आ गया 1, 5h का क्यूब आ गया 125h क्यूब, और 3 into 1 square और 5h ये आ गया 15h into 1, और 3 into 1 is 3 and 5h whole square is 25h square. ये जब सॉल्व हुए तो 1 minus 125h cube minus 15h plus 75h square, and in the last step we will rearrange it. Minus 125h cube plus 75h square minus 15h plus 1.
और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट F 7a माइनस 2। और बिल्कुल उसी तरह फॉर्मूला हमने माइनस का लिखा और a और b की वैल्यूज अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 7a minus 2, the value of a is 7a and the value of b is 2. 7a whole cube minus 2 whole cube minus 3 into 7a whole square into 2 plus 3 into 7a into 2 whole square. इनकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। 7a multiplied by 7a multiplied by 7a is 343a cube. 2 cube is 8, you know it. 3 into 2 is 6, and 7a whole square is 49a square. And 3 into 7a is 21a, and 2 into 2 is 4. And in the next step, 343a cube as it is, minus 8 as it is. 49 into 6 is 294a square as it is, and plus 21 into 4 is 84a. And in the last step, we are going to arrange it in the descending order. 343 a cube minus 294 a square plus 84 a minus 8, right? So these are the 6 parts of question number 1, in which we have learned for the two formulas, a minus b whole cube and a plus b whole cube. And now you have to write down all these parts on your neat copy, and you have to practice them well, so that you can have a good command on them. Thank you, class, and have a nice day.